Hello friends. So today we are going to see action research in professional development of teachers. So contribution of action research in professional development of teachers. Today we will be seeing this topic. I am Dr. Niaz Ahmed. So let's begin the topic. So action research in professional development of teacher. So let's see what is professional development. So professional development for teachers can help teachers to plan their time better and stay organized. So if the teacher are professionally developed, they will be able to plan their time better and they will be organized. Then professional development of teacher ensures that teachers should be able to answer every question that students throw in. So when the teachers are professionally developed, they will be able to answer each and every questions the students put in. Then professional development programs normally allows the teachers to expand their knowledge base in various areas of the subjects, so they will be able to upgrade their knowledge with the help of professional development. So here in this topic we are going to see the areas of professional development when the teachers participate in action research. So what we are going to identify the areas where the teachers generally professionally grow. Okay, सो प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स का मतलब ये होता है कि टीचर्स जो होते हैं वो अपने टाइम को बेटर प्लान कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज रह सकते हैं जब वो प्रोफेशनली डेवलप होते हैं. प्रोफेशनल डेवलपमेंट नॉर्मली क्या करता है कि टीचर्स को इंश्योर करता है कि बच्चे जो भी क्वेश्चंस पूछें टीचर से उसका आंसर अच्छे तरीके से कर सके, है ना. जितने भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के बाद जो टीचर्स होते हैं उनका प्रोफेशनल या फिर नॉलेज बेस जो होता है सब्जेक्ट्स के अंदर बड़ा हो जाता है. सो इस टॉपिक के अंदर हम क्या देखने वाले हैं कि कौन कौन से एरिया है प्रोफेशनल डेवलपमेंट के जहाँ पे टीचर्स इम्प्रूव करते हैं जब वो एक्शन रिसर्च में पार्टिसिपेट करते हैं. ओके, सो लेट्स सी द एरियाज वेयर वी जनरली सी द प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स व्हेन दे पार्टिसिपेट इन एक्शन रिसर्च. सो पहला है एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज. सो let's say expansion of knowledge. So action research, the teacher feels enables them to read, explore and see what has been going on in the field of study. So here the teacher has to read, has to explore and has to see what is there happening in this field of study where they are intended to do the research. To accomplish the inquiry at hand, they had to dig out and see how others elsewhere has handled such things. This made them learn not only from their own investigation but also from the literature they reviewed. The research has been a push factor for them to read and expand their knowledge. So action research में normally क्या होता है कि teacher normally feel करता है, उसको पढ़ना होता है, explore करना होता है जिस field of study में उसको स्टडी करना होता है ना. तो सपोज उसको स्टडी करना मेंटल हेल्थ के बारे में, तो मेंटल हेल्थ के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ेगा, एक्सप्लोर करेगा और ये देखेगा कि इसके पहले किसी ने मेंटल हेल्थ पे स्टडी की है या नहीं की है ना. फिर जो भी टॉपिक उसने सेलेक्ट किया है स्टडी करने के लिए उसके अंदर वो डिग आउट करता है, दूर अंदर तक जाता है ना, उसको पता करने के लिए कि क्या चीज़ है, दूसरों ने इसके अंदर क्या किया हुआ है. और इसकी वजह से क्या होता है, ही इज़ नॉट ओनली लर्निंग हिज ओन इन्वेस्टिगेशन, वो खाली अपने रिसर्च के बारे में ही नहीं पढ़ता है बल्कि वो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर करता है जिससे वो दूसरों ने इसके अंदर क्या किया हुआ उसका भी वो पता करता है ना. तो जनरली जो एक्शन रिसर्च उसको पुश करता है कि रीड, कि रिसर्चर जो है वो रीड करे, टीचर रीड करे और अपने नॉलेज को क्या करे, एक्सपांड करे. तो एक्शन रिसर्च में पार्टिसिपेशन के बाद जो भी रिसर्चर है या टीचर है उसका नॉलेज क्या होता है, एक्सपांड होता है. Then raise consciousness. So action research engagement urges the participant to read, explore and ask other work on the area they are investigating. So here the researcher is going to investigate the area and are going to also see what others have done in the particular area. So to enrich what they are doing at hand and they dig out others' accomplishment also. So the effort increases professional knowledge as well as research skill and this raises their consciousness on what they are doing and how to go about. Okay,
सो रिसर्च, एक्शन रिसर्च की वजह से टीचर के अंदर कॉन्शियसनेस जो होती है वो बढ़ जाती है, बिकॉज वो रिसर्च में इंगेज है। और रिसर्च में इंगेज होने की वजह से क्या होता है, जो पार्टिसिपेंट है उनको पढ़ना पड़ेगा, उनको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और दूसरे ने उस एरिया में क्या काम किए हैं उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो भी टॉपिक उनके हाथ में है और दूसरों ने इसके अंदर क्या अकम्प्लिश किया, वो दोनों चीज़ें वो देखेंगे, उनका नॉलेज उसमें बढ़ेगा, है ना। सो इसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज इन प्रोफेशनल नॉलेज, उनका प्रोफेशनल नॉलेज बढ़ेगा, दूसरे ने कैसा रिसर्च किया है, कौन सा मेथड अप्लाई किया है, कौन से सैम्पल्स अप्लाई किए, तो उनका प्रोफेशनल नॉलेज बढ़ेगा, है ना, मेथड सक्सेसफुल रहा है कि नहीं रहा है, और साथ साथ में उनकी रिसर्च स्किल भी क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। और जिसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी रेज इन देयर कॉन्शियसनेस, उनकी कॉन्शियसनेस उस टॉपिक को लेके बढ़ेगी कि वो क्या कर रहे हैं और उसको कैसे करना है। सो बोथ द थिंग्स विल इंक्रीज। सो जब भी कोई भी टीचर एक्शन रिसर्च में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनका कॉन्शियसनेस क्या होगा, रेज होगा। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी आर गोइंग टू अचीव विद द हेल्प ऑफ एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट वन इज मैक्सिमाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो जब भी आप एक्शन रिसर्च में पार्टिसिपेट करेंगे, व्हेन द टीचर participates or do action research to elevate the classroom problem, they also get other opportunities also. There is a promotion as well as incentives awaiting for the teachers who endure such things. Moreover, research is very crucial skill to pursue further education, and many consider research challenging. Okay, so what happens here, it is a way to encouragement of the teacher's accomplishment. So here when the teacher is doing action research, it maximizes other opportunities, they get incentives, they get promotions, so they feel happy when they face challenge of research, so they are getting encouragement through their accomplishment. So जब भी टीचर क्या करते हैं, एक्शन रिसर्च में पार्टिसिपेट करते हैं कि जो भी क्लासरूम प्रॉब्लम्स है उसको वो ख़त्म कर सकें, उसके साथ साथ उनको कई सारी दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है। एक तो क्लासरूम प्रॉब्लम सॉल्व होता है, दूसरा उनके काम की वजह से उनको प्रमोशन मिलता है, उनको इंसेंटिव्स मिलते हैं, है ना। और रिसर्च जो है बहुत ही क्रूशियल थिंग है, जिसकी वजह से वो फर्दर एजुकेशन में भी उनका इंटरेस्ट बढ़ता है। और रिसर्च चैलेंजिंग है तो चैलेंज समझ के भी लोग अच्छे से करते हैं, है ना। और इसकी वजह से टीचर्स को अपनी अकम्पलिशमेंट की वजह से इंकरेजमेंट मिलता है। नेक्स्ट इज मोटिवेशन। तो मोटिवेशन नॉर्मली अर्ज होती है अंदर से कि हम कोई भी लैडर को हम क्लाइंब करें, तो व्हेन वी क्लाइंब अप द लैडर, सो वन ऑफ द रीजन कुड बी द रिसर्च स्किल हियर। सो वी हैव डेवलप्ड द रिसर्च स्किल हियर। So whether the female teacher or the male teacher, they are equipped with this will add confidence and motivation for them to educate themselves. Besides, they stated that it is a way of break from mere teaching. Action research engagement motivates teacher. So normally this motivates teacher to do some more work. So motivation भी मिलता है जब आप क्लाइंब में आपको प्रमोशन मिल गया, है ना, आपको इंसेंटिव्स मिला, है ना, आपकी रिसर्च स्किल अच्छी हो गई, तो आप इन सब चीज़ों से क्या होगा, चाहे वो आप मेल टीचर हो चाहे फीमेल टीचर हो, आप इससे सारी चीज़ें आपके अंदर इक्विप हो गई, जिसकी वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, मोटिवेशन मिलेगा, और अपने आप को एडुकेट करेंगे आप, है ना। सो नॉर्मल टीचिंग लर्निंग जो आप कर रहे थे उससे थोड़ा सा ब्रेक लेके आप ये सारी चीज़ें भी आपके अंदर डेवलप हो रही है, तो इसकी वजह से आपके अंदर मोटिवेशन होगा। देन सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन। सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन, अगर हम क्लासरूम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ रूटीन एक्टिविटी ऑफ द टीचर। We also discuss about inventions and its results, making use of routine activity, procedural and conscious change it from ordinary to systematic activity. So research is a systematic activity here. So teachers normally discuss how to innovate their teaching, how to make a conscious change in the teaching so that a systematic activity can be performed. So here this research is a systematic investigation where normally planning is done. So their activity is the inquiry witnesses that they plan the investigation beforehand, they identified the what and how and why of the problem before everything else.
Then hypothesizing and making predictions. So they hypothesize before implementing the actions which are meant to improve the difficulty. Hypothesizing is scientific and systematic way. The collecting and measuring data, identifying data collection instrument, deciding on what sample, formulating research questions and collecting, organizing and measuring it in a systematic way. तो अगर टीचर्स एक्शन रिसर्च में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके अंदर सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन की स्किल डेवलप होती है। टीचर्स हमेशा क्लासरूम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं बिकॉज ये उनकी क्या है, रूटीन एक्टिविटी है। वो और भी डिस्कस करते हैं कि कई सारे इंटरवेंशंस वो यूज़ करते हैं, उसका रिजल्ट भी वो डिस्कस करते हैं, है ना। तो ये रूटीन एक्टिविटी को थोड़ा प्रोसीजरल और कॉन्सिक्वेंस चेंज बनाने के लिए थोड़ा सिस्टमैटिक एक्टिविटी का यूज़ कर सकते हैं टीचर्स। और रिसर्च उसमें क्या एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर है, तो जिसके अंदर आपने देखा कि आपको प्लानिंग करनी होती है। तो जो भी एक्टिविटी आप क्लासरूम में कर रहे हैं, है ना, जिसको आपको इन्वेस्टिगेट करना है, उसके बारे में आप प्लान बिफोर हैंड करेंगे। प्लान बिफोर हैंड करने का मतलब क्या, आप आइडेंटिफाई करेंगे व्हाट, हाउ एंड वाई ऑफ द प्रॉब्लम। तो इसके बारे में आप पहले से ही पता करेंगे बिफोर एवरीथिंग एल्स। तो स्टार्ट करने से पहले आप प्रॉब्लम्स के बारे में सारी चीज़ें प्लान कर लेंगे। प्लानिंग करने के बाद आपको हाइपोथेसाइजिंग करना और मेकिंग प्रेडिक्शंस। तो हाइपोथेसाइज का मतलब क्या होता है, यू आर मेकिंग अ टेंटेटिव सॉल्यूशंस। सो दे हाइपोथेसाइज बिफोर इम्प्लीमेंटिंग द एक्शंस। तो आपको पहले प्लान को इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको उसके सॉल्यूशंस के बारे में, है ना, वो करना है कि क्या क्या इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, अज्यूम करना कि क्या क्या इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कौन कौन से चीज़ें अगर हम करें तो हमको इम्प्रूवमेंट मिलेगी, है ना। सो हाइपोथेसाइजिंग इज साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग रिसर्च। तीसरा चीज़, आपने हाइपोथेसाइज कर लिया तो अब आपको क्या करना है, उसको कलेक्ट करना है डेटा, है ना। तो आइडेंटिफाइंग डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, जो भी टूल आपको यूज़ करना है वो आप करके आपको डेटा कलेक्ट करना है। आपको डिसाइड करना है कि आपके सैम्पल क्या होंगे, आपको रिसर्च क्वेश्चन फॉर्मुलेट करना है और डेटा कलेक्ट करना है। फिर डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, उसको मेजर करना है, उससे कंक्लूजन निकालना है। तो ये पूरी चीज़ें जो क्या है एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर टीचर जो है एक्शन रिसर्च में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके अंदर सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन की स्किल डेवलप होती है और ये भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट का एक पार्ट है। सो नेक्स्ट इज क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन। सो कोई भी एक्शन रिसर्च करने के लिए टीचर को क्या करना होता है, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन करना होता है। तो टीचर कन्फर्म दैट दे बिकम क्रिटिकल ऑब्जर्वर ऑफ देयर क्लासरूम एंड इस एनवायरनमेंट। तो a lot of teachers who have done this action research, they have confirmed that they have become critical observers in their classroom. So the knowledge of action research has made them think that thing can be improved through investigation. So through that they feel that through critical observation they can just find out the root cause of the problem and they can find out the impact of the strategies they are incorporating in the class and इट विल लीड टू इम्प्रूवमेंट। तो क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन भी कई सारे टीचर्स ने किया है कि अगर हम एक्शन रिसर्च में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके अंदर क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन की स्किल डेवलप होती है और उसका नॉलेज जो होता है ना, वो कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो कर रहा है अगर क्रिटिकली उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है तो उससे उसको इम्प्रूव करने में उसको हेल्प मिलेगी। देन डिटेक्ट प्रॉब्लम्स और आस्क क्वेश्चंस। सो ये भी स्किल टीचर्स के अंदर डेवलप होती है, डिटेक्ट क्वेश्चन एंड आस्क problems and ask questions. So as a result of being observer, they are being able to identify their classroom problems. They being able to identify the problem is said to be half the solutions. The teacher felt that it is highly significant to be able to dictate the problem that hinders the teaching learning process. Moreover, among the problems they select and they prioritize. So here हमने देखा कि ऑब्जर्वर तो है ही, क्रिटिकल ऑब्जर्वर हो गया, उसकी वजह से उसको क्लासरूम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगी, है ना। वो ऐसी क्लासरूम प्रॉब्लम्स को भी आइडेंटिफाई कर सकता है जिसका हाफ सोल्यूशन ही है, हाफ अभी भी सोल्यूशन फाइंड आउट करना बाकी है। तो टीचर्स ये हाईली फेल्ट नीड है कि वो क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को डिक्टेट कर सकते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स को जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में रुकावट डालते हैं, है ना। तो इस तरह से सारी प्रॉब्लम्स को सेलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, वो प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है उसको पहले वो सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि टीचर्स एक्शन रिसर्च में पार्टिसिपेट करके प्रॉब्लम
को डिटेक्ट करने की स्किल्स भी डेवलप कर सकते हैं और क्वेश्चनिंग की स्किल उनके अंदर डेवलप हो जाएगी। जब क्वेश्चनिंग की स्किल डेवलप होगी तो वो कई सारे क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। देन डिसीजन मेकिंग। एक्शन रिसर्च में डिसीजन मेकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है जो डेवलप होती है। अब डिसीजन मेकिंग का क्या होता है कि यू हैव टू मेक चॉइस is one of the important skill that the participant claim they have learned as a result of their investigation. So they have just learned in the decision making skill, because action research is about improving a situation that is found unsuitable for teaching learning process. So why we are doing action research? Because we felt that there is a problem and this problem is hindering the teaching learning process, and we want to find out the solution of this unsuitable things which is hindering the teaching learning process. So what we have to do here, we have to just go for appropriate choice. So we have to make an appropriate choice, and for making appropriate choice we have to make decision. So when the researcher chooses what he or she thinks is one that can bring a real change, he is making decisions. So when he's choosing the things means he's making a decision. So how the investigation is implemented, how the change is evaluated, what data collection instruments should be used, and how the results should be analyzed also need decision making. So this is what the target group feels that they have learned from inquiry. So teachers ने जिन्होंने एक्शन रिसर्च यूज़ किया उन्होंने बोला है कि चॉइसेस जो उनको करनी होती है एक्शन रिसर्च में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल डेवलप करती है उनके अंदर जनरेटिव डिसीजन मेकिंग, और ये उनको इस एक्शन रिसर्च से और ज़्यादा डेवलप होती है। तो एक्शन रिसर्च आप देखेंगे यहाँ पे, तो एक्शन रिसर्च नॉर्मली हम इसलिए करते हैं कि जो भी हमारे टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस है, जो भी उसके अंदर अनसुइटेबल कंडीशंस है उसको दूर करना, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चॉइसेस लेनी पड़ेगी, सेलेक्ट करने पड़ेंगे, और यही चॉइस को सेलेक्ट करना ही क्या है, दिस इज़ एक्शन रिसर्च। और यही चॉइस हम सोचते हैं कि अगर हमने सही चॉइस सेलेक्ट की है तो वही रियल चेंज लेके आएगी। तो हमारा डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी हमको कई जगह और डिसीजन लेने पड़ते हैं, जैसे कि चेंज को कैसे हम इवैल्यूएट करेंगे, डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे डेटा कलेक्शन के लिए, जो रिजल्ट आएगा उसको कैसे हम जो है एनालाइज करेंगे, है ना। तो ये सब स्टेजेस पे भी हमको डिसीजन लेना है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि एक्शन रिसर्च में आप जित प्रोसेस में जब भी आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपके अंदर ये स्किल डेवलप होती है। वो कौन सी है, जिसे हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं। तो अच्छा डिसीजन मेकिंग मेकर हो जाता है जब भी कोई टीचर एक्शन रिसर्च में पार्टिसिपेट करता है। सो नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरवेंशन। सो टीचर के अंदर ये स्किल भी डेवलप हो जाती है कि जब भी researcher choose करता the intervention which he thinks can bring the change in the situation, implementation remains. So how, when, where and whom to be implementation is decided by the researcher, है ना। तो implementation of the intervention में भी उसको डिसीजन लेना होता है कि कब कौन इसको implement करेगा, कहाँ पे उसको implement करेगा, है ना, और कब इम्प्लीमेंट करेगा, ये भी रिसर्चर को डिसाइड करना होता है। तो एक इंटरवेंशन को कब इम्प्लीमेंट करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कौन इम्प्लीमेंट करेगा, ये सारी स्किल्स भी टीचर के अंदर डेवलप होती है। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरवेंशन इज ऑल्सो डेवलप्ड अमंग द टीचर। देन नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन। सो रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन इज एज अ रिजल्ट ऑफ एक्शन रिसर्च इन्वॉल्वमेंट द सब्जेक्ट्स मीन्स द टीचर रिफ्लेक्टेड ऑन एक्शंस दे हैव इंटरवीन to improve their practice, they look back to their impact on their actions on their practice. So आप देखेंगे कि आपने जो स्ट्रैटेजी यूज़ की है उसको जब आप क्या करेंगे, उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे अपने एक्शन पे, तो आपको पता चलेगा कि कितना इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करने के बाद इम्प्रूवमेंट आई है प्रैक्टिस में, है ना। तो इस स्टेज में आप एक अच्छे रिफ्लेक्शन हो सकते हैं। तो टीचर कैन बिकम अ गुड रिफ्लेक्टर। Okay, so he will develop the skill of reflection when he participates in action research. Action research में participate करने की वजह से वो पीछे जाके देखेगा कि पहले ये प्रॉब्लम क्या थी और जब आपने स्ट्रैटेजीज की है तो उसके बाद ये प्रॉब्लम क्या आई है, तो वो उसमें डिफरेंस दे सकता है, अपने एक्शन को क्या कर सकता है, वो रिफ्लेक्ट कर सकता है। देन इवैल्यूएशन। सो इवैल्यूएशन, तो पैरेलल टू रिफ्लेक्शन इज एबिलिटी टू इवैल्यूएट द स्किल। Every time an intervention is implemented, it is evaluated to check the extent of
improvement is exerted on the practice, did the intervention work or not, if it did, what to what extent है. So evaluation is also very important. So ये भी स्किल टीचर्स के अंदर डेवलप होती है कि कैसे कोई भी एक्टिविटी को हम इवेलुएट करें. सो एक्शन रिसर्च में रिफ्लेक्शन के साथ साथ आपको क्या करना होगा, इवेलुएट भी करना होगा. ये भी स्किल आपके अंदर डेवलप होगी. तो जब भी आप कोई भी इंटरवेंशन को या स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करेंगे तो साथ साथ उसको क्या करना होता है, आपको चेक भी करना होगा कि इसकी वजह से प्रैक्टिस के अंदर जो भी आप चीज़ चेंज लाना चाह रहे थे जिसके अंदर, उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट आया है नहीं आया. तो अगर इंप्रूवमेंट आया तो किस हद तक आया है, ये भी आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा. तो ये स्किल भी आपकी डेवलप होगी, स्किल ऑफ इवैल्यूएशन विद द हेल्प ऑफ एक्शन रिसर्च. नेक्स्ट इज प्रोफेशनल डायलॉग and discussion and communication. So this skill will also be developed with the help of action research. So the inquiry demanded the teachers to engage in professional dialogue, talk about their research with the colleagues, ask advice about their inquiry from experienced researchers, teachers and friends. They said that they have had a lot of talking about their study with colleagues and learned a lot. So प्रोफेशनल डायलॉग, डिस्कसिंग एंड कम्युनिकेशन, ये भी स्किल टीचर्स के अंदर डेवलप होती है. जब भी कोई रिसर्च करेंगे, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो अपने कलीग से, अपने फ्रेंड से और एक्सपीरियंस रिसर्चर से क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू मेक अ डायलॉग. सो वो डायलॉग करेंगे और उसके अपने प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, है ना. तो इस वजह से क्या करते हैं, दे लर्न अ लॉट. काफ़ी ज़्यादा लर्निंग इस वजह से भी उनके अंदर होती है. ये स्किल टीचर्स के अंदर डेवलप होती है कि उनके अंदर प्रोफेशनल डायलॉग की स्किल डेवलप होगी. दे विल एबल टू डिस्कस एंड कम्युनिकेट वेल रिगार्डिंग द प्रॉब्लम. देन रीडिंग. सो टू accomplish the inquiry at hand, they had to dig out to see how other else have handled such things. So this made them to learn not only from their own investigation but also from the literature they have reviewed. So this research put them फैक्टर टू रीड. सो आपको पता है कि जब आप एक्शन रिसर्च करोगे तो उसके साथ साथ आपको काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा. आपको उस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा. फिर ये भी देखना पड़ेगा कि किसी दूसरे ने इस टॉपिक पे क्या किया हुआ है, तो आपको रिव्यू भी करना पड़ेगा, है ना. तो आपने काफ़ी ज़्यादा रिव्यू भी किया है, तो जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके अंदर रीडिंग स्किल डेवलप करनी पड़ेगी. तो आपको रीडिंग हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी एक्चुअली. तो ये स्किल भी एक्शन रिसर्च से टीचर के अंदर डेवलप होती है, रीडिंग की स्किल. सो नेक्स्ट इज एम्पावरमेंट. सो अगर आप देखेंगे तो लुकिंग देमसेल्व्स एज अ रिसर्चर इनेबल द टीचर्स टू इम्प्रूव देयर टीचिंग कंडीशन एट देयर बेस्ट. द एक्शन रिसर्च इनेबल्स देम be resource person who have something to contribute, the administrator, the parents, the curriculum developers, rather than being passive recipient, observer and accomplishers of other works. The direct involvement of teachers in the improvement of their own teaching learning problems made them feel like they are the center of the most important element in the process. So आप देखेंगे कि अगर टीचर्स क्या करते हैं कि एक्शन रिसर्च में पार्टिसिपेट करते हैं तो अपने अंदर वो एम्पावरमेंट फील करते हैं, है ना. तो अगर अपने आप को रिसर्चर की तरीके से देखते हैं तो आप देखेंगे कि जो भी एक्शन रिसर्च होगा उससे उनकी टीचिंग लर्निंग एबिलिटी क्या होगी, इम्प्रूव होगी. तो अगर वो टीचिंग लर्निंग एबिलिटी इम्प्रूव हो रही है, टीचिंग कंडीशंस इम्प्रूव हो रहा है, तो वो अपने आप को एम्पावरमेंट फील करेंगे. अगर एक्शन रिसर्च की आप देखेंगे तो इससे टीचर इज़ नॉट ओनली द टीचर बट ही हैज़ बिकम द रिसोर्स पर्सन. अब वो रिसोर्स पर्सन बन गया है ना एक्शन रिसर्च करके. उसने एक नया नॉलेज फाइंड आउट किया है एंड दैट नॉलेज ही कैन कंट्रीब्यूट. अब वो नॉलेज को कंट्रीब्यूट कर सकता है अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स को, जो उसके स्कूल के अथॉरिटीज़ है, पेरेंट्स को कंट्रीब्यूट कर सकता है, करिकुलम डेवलपर्स को कंट्रीब्यूट कर सकता है. अब वो पैसिव रेसिपिएंट नहीं है कि कोई अलग से उसको बताएगा कि आपको ऐसे पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाना, ये स्ट्रैटेजी यूज़ करो. अब वो पैसिव रेसिपिएंट नहीं है बल्कि वो खुद अपनी स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा है ना. तो ही इज़ नॉट द पैसिव रेसिपिएंट, ऑब्जर्वर और अकम्प्लिशर्स ऑफ अदर वर्क, बट नाउ व्हाट इज़ डूइंग, ही इज़ directly involving in the research and improving their own teaching and learning problems. So they feel the center of the most important element of the process. तो अब जो important process है teaching learning का, उसमें वो अपने आप को कहाँ पा रहा है, सेंटर में पा रहा है, अपने आप को empowered फील कर रहा है. The next one is professional self confidence. सो प्रोफेशनल सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आप देखेंगे तो टीचर विल डेवलप प्रोफेशनल सेल्फ कॉन्फिडेंस एज अ रिजल्ट ऑफ देयर ओन इन्वॉल्वमेंट इन द एक्शन रिसर्च. एनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्शन रिसर्च इंक्रीजेस प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस ऑन द पार्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स सिंस इट इंक्रीजेस देयर एबिलिटी. एक्शन रिसर्च इन्वॉल्वमेंट
also increases the participants' ability in relation to inquiry. They are increasing their professional confidence. तो आप देखेंगे कि प्रोफेशनल सेल्फ कॉन्फिडेंस कब आएगा आपके अंदर, जब आप अपनी स्किल्स को अच्छा कर ले, जब आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंप्रूवमेंट ले आएँ, है ना। अब ये टीचर्स के अंदर कैसे आती है, उसने एक्शन रिसर्च किया हुआ है और उसने देखा कि ये चीज़ें बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करें लेसन्स के लिए, तो उसने स्ट्रैटेजीज़ किया है, स्ट्रैटेजीज़ अप्लाई करने पे उसको बेनिफिट मिला, उसका बच्चे पार्टिसिपेट करने लगे उसके लेसन्स में। तो क्या होगा, उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस किससे रिलेटेड होगा, प्रोफेशनल सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये क्या होगा, उसके अंदर प्रोफेशनल सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और ये किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन देयर एबिलिटी। तो ये किसकी वजह से है, बिकॉज उसकी एबिलिटी अब पहले से ज़्यादा इंक्रीज हो गई है ना। तो हम बोल सकते हैं कि ये भी एक स्किल डेवलप होती है टीचर्स के अंदर जब वो एक्शन रिसर्च में पार्टिसिपेट करते हैं, तो प्रोफेशनल सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है। एंड द लास्ट वन इज प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो अगर हम पहले की बात करें तो इन द पास्ट द ओनली जॉब ऑफ टीचर्स वाज कंसीडर्ड टू बी टीचिंग। तो हम सोचते थे कि टीचर्स को सिर्फ पढ़ाना है, तो यही उसका जॉब है। इन दैट केस इफ problem arises in the teaching learning process, teachers used to feel that there is somebody else jobs to improve it. तो कोई भी अगर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो टीचर ऐसा फील करते थे कि कोई और है जो इस प्रॉब्लम को दूर करेगा, ये हमारा काम नहीं है ना। सो ऑल दे थिंक दे आर सपोज टू डू इज़ टू रिपोर्टिंग इट एंड इफ़ दे आर केयर टू डू सो। बहुत ज़्यादा अगर वो करते थे तो क्या सोचते कि चलो हम इसको रिपोर्ट कर देते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन इम्प्रूवमेंट का काम कोई और करेगा। But if we see today's scenario now, as a result of their involvement in their own problem solving activity, they are been responsible. तो अब वो responsible उसमें improvement के भी, है ना, because अब वो teaching learning process में problem solving activities में directly involve हैं। So worrying about the problem and trying to solve it is a witness of responsibility. तो अभी वो problems के पीछे परेशान रहते हैं कि क्यों ऐसी problem हो रही है, और बहुत ही एक्टिव ट्राई भी करते हैं कि कैसे उसको सॉल्व किया जाए। तो ये क्या दिखाता है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है टीचर्स की, है ना। सो टेकिंग पार्ट इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वेस्टिगेशन रिफ्लेक्शन इन टर्न डेवलप्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप देखेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन में और रिफ्लेक्शन में पार्ट लेते हैं, तो ये सब उनको रिस्पॉन्सिबल बनाता है। तो टीचर्स इंगेजमेंट इन एक्शन रिसर्च रियली मेड देम रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर प्रोफेशन। तो आप बोल सकते हैं कि एक्शन रिसर्च में पार्ट लेने से टीचर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल, अपने प्रोफेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो ये कुछ हमने क्या देखा है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट की एरियाज देखी है, दैट विल कम थ्रू पार्टिसिपेशन इन एक्शन रिसर्च। सो दीज एरिया of professional development the teacher can develop by participating in action research. So thank you very much, dear students.